So today's topic of accounting for the first year, we have general. This is we call double entry system, in which we record every transaction twice. Okay. So whenever we want to record the transaction twice, we used to make the journal entries. Clear? So there are other ways of recording these transactions, but first of all, I would like to discuss few basic transactions with you people that we have discussed. Started business with cash, rupees 20,000 cash, debit, capital, credit. Then we have done a few transactions related to sales and purchases, in which I have done with you sales on cash, sales on credit, and then purchases on cash and purchases on credit. So these were the basics which we have done till then. We have done expenses journal entry, liability journal entry, and revenues journal entry. Clear? These are the five nature of accounts, and we have done these journal entries. I proceed further. uh, in today's class, we have the wrap up activity. The questions are: what will be the journal entry when we sold furniture on cash? What will be the journal entry when we paid electricity bill? What will be the journal entry when we sold goods on cash, and when we sold goods on account to Mr. Ali? And what will be the journal entry when we return the defective goods? Basically, all these questions are related to my previous lectures, in which I have discussed the general journal. So let's proceed towards step-up activities. Are for your brainstorming. These questions are groom yourself, you can say, help out whatever you have stored in your mind and how much you have learned. So I have created this wrap-up activity just for you people, so that you people can more memorize it. Now come towards the more general tricks and techniques. We have this is question number one, study block. Question number one, if I go through your book, I think this is your book page number. Let me discuss your page number of your book also. Wait for a while. This is on your book page number 44. So you should open your books of accounts with me and follow your intermediate Karachi board book. This is bought goods for cash. So if I talk about bought means purchases. ठीक है, purchase goods on cash. Journal entry क्या बनेगी जी? Purchases debit, cash credit. Clear? Bought goods on A and company. यहाँ पे कंपनी का नाम भी गिवन है और ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है. पहले वाले केस में मैंने बॉट गुड्स था, तो गुड्स के नेम भी मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट लिखा था. ठीक है बेटे. अब नंबर टू में क्या है? बॉट गुड्स है बट नेम ऑफ द कंपनी भी मेंशन है और ऑन क्रेडिट भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट कह रही हूँ. याद रखिएगा, आपके पास सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपके पास ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट हो, ठीक है, तो आपने जो है वो वर्ड यूज करना है परचेजेस के साथ अकाउंट्स पेएबल और सेल्स के साथ अकाउंट रिसीवेबल. पेएबल का मतलब पैसे अदा करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब पैसे अभी आपके पास आने हैं. फिर आपने जब परचेजेस ऑन क्रेडिट किया था, जर्नल एंट्री बनाई थी परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिट. ठीक है. इसके बाद थर्ड एंट्री में हमने बनाया है रिटर्न गुड्स टू ए एंड कंपनी. हमने उसमें गुड्स रिटर्न कर दी, मींस ए एंड कंपनी ने यहाँ पे परचेज करी थी, अब उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करी हैं. ठीक है, कुछ करी हैं, सारी नहीं करते, कुछ करी हैं, तो जो भी आपको डिफेक्टिव लगेंगी. यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न की. ठीक है. Now your journal entry for the purchase return will be accounts payable debit and purchase return credit. Clear? I repeat, accounts payable debit, purchase return credit. क्योंकि यहाँ पे आपने accounts payable नंबर 2 में क्रेडिट किया था, जब आप उसमें से रिटर्न करेंगे commodities, तो अकाउंट पेएबल आपका लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड. Number 4, sold goods for cash. What I have to do? Cash debit, sales credit. Then number 5, sold goods to B and company on credit. Now how I will record it? Account receivable debit, sales credited. Clear? Then number 6,
बी एंड कंपनी रिटर्न गुड्स टू अस, इट मीन्स बी एंड कंपनी ने पहले आपसे सामान खरीदा था उधार पर, अब वो उसमें से थोड़ा सा सामान आपको रिटर्न कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड एंड अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? अगर हम नंबर 5 में देखें तो इसमें आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट की जर्नल एंट्री बनाई थी। नंबर 6 में आपने बी एन कंपनी को गुड्स रिटर्न करी हैं, यहाँ पे आप बी एन कंपनी जो है वो आपका कस्टमर है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड एंड अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। आई रिक्वेस्टिंग वंस अगेन फ्रॉम दोस्त स्टूडेंट जिनकी प्रैक्टिस कम है, देखें अकाउंटिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप जो हैं अपने आप को यूँ ब्लेम देते रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, बट अगेन यू हैव टू डू अ प्रैक्टिसिंग। अकाउंटिंग है, मैथ्स है, स्टेट्स होगी, जितने भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल नीड प्रैक्टिस अ लॉट. So kindly be prepared and do your homework and home assignments on time. This is question number 5. I proceed here on this question. Number 1, we have Salim started business rupees 50,000. Now, what will be the journal entry for this? Started business, cash debit, capital credit. यहाँ आप देख लीजिए cash debit हुआ है, capital credit है 50,000 and then 50,000. Then I record the transaction. Sorry, this is the narration to record कि आगे मैंने अपनी वही same transaction लिख दी है. It should be in the bracket. Then I put this line. This is called narration line. ठीक है, where I'm moving my cursor बेटे. Number 2, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 35,000. हमने सामान खरीदा है, परचेज किया है, गुड्स के नेम मेंशन नहीं है, इसलिए मैं परचेजेस का वर्ड यूज करूंगी. परचेजेस डेबिट एंड देन यहाँ पे ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट नहीं है, देन आई विल यूज द वर्ड कैश. परचेजेस डेबिट एंड देन कैश क्रेडिट. ठीक है, परचेजेस डेबिट है, ठीक है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड कैश इज डिक्रीजिंग. अगर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम यहाँ पे अप्लाई करें, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीजेस, इट इज डेबिटेड. कैश, कैश इज योर एसेट, एसेट डिक्रीजेस, इट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, then again narration and narration line. I proceed. Sold goods rupees 40,000. Sold rupees, the sold goods on 40,000 means आपके पास यहाँ पे ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट नहीं लिखा हुआ, आपने गुड्स 40,000 में सोल्ड आउट करी हैं. अगेन यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन कैश है, ठीक है. सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है, सेल्स कभी डेबिट नहीं होगी, सामान हमेशा आपका सोल्ड आउट ही होगा. सो व्हाट विल जनरल एंट्री, कैश डेबिटेड and sales credited 48,000 and then 48,000. Clear? Narration and then narration line. We have purchased goods from Kamran rupees 6,000. Purchased goods from Kamran. Yes, now what I have to do? We have purchased goods from Kamran. Name of the person is mentioned. Is there a mention any on account or on credit? No. But the name of the person also shows it is your credit transaction. My journal entry will be purchases debit, accounts payable Kamran is credited. हमारे पास इस जर्नल एंट्री में अगर आप यहाँ पे देखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान, यहाँ पे आपके पास ऑन कैश और ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, बट नेम ऑफ द पर्सन मेंशन है, जो कि ये बात शो कर रहा है कि आपके पास ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट है. ठीक है. देन सोल्ड गुड्स टू जिशान, यहाँ पे आपने जिशान को सामान सोल्ड किया है, बेटे यहाँ भी ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट नहीं लिखा हुआ, बट नेम ऑफ द पर्सन मेंशन है. इट मीन दिस इज ऑल्सो योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. हमारे पास जर्नल एंट्री क्या फॉर्म होगी बेटे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. दिस वन अकाउंट रिसीवेबल, जिशान का नाम हमेशा या नेम ऑफ अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल के आगे नेम ऑफ द पर्सन हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं. हमने यहाँ पे सेल्स को ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रीट किया है क्योंकि हमारे पास नेम ऑफ द पर्सन मेंशन है. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड देन सेल्स क्रेडिट. याद रखिएगा जो चीज़ आपकी डेबिट होगी वो आपकी लाइन के यहाँ से शुरू होगी, लेफ्ट हैंड साइड से टच होती हुई. ठीक है. और जब और कोई चीज़ आप क्रेडिट लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से एक स्पेस दीजिएगा, 2 फिंगर स्पेस, एंड देन आपने उसको क्रेडिटेड वाले को लिखना है. ठीक है. इसके फुटर से लिखते हैं यूजली. I proceed further. Then we have Zishan return goods 1200. पहले आपने जिशान को सोल्ड गुड्स टू जिशान, जिशान को हमने सामान सोल्ड किया था. जर्नल एंट्री क्या बनाई थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट.
अब जिशान ने उसमें से थोड़ा सा सामान रिटर्न कर दिया, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय जिशान, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड एंड अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? रिटर्न गुड्स टू कामरान, कामरान को आपने सामान रिटर्न किया है क्योंकि आपने सिर्फ परचेज किया था ना, देखिएगा परचेज फ्रॉम कामरान, तो इधर यहाँ पे गुड्स टू कामरान आएगा, रिटर्न गुड्स टू कामरान, कामरान को रिटर्न करी, ठीक है। और यहाँ जिशान रिटर्न गुड्स या गुड्स रिटर्न बाय जिशान, इंग्लिश में फ़र्क है, जब कस्टमर हमें रिटर्न करेगा तो बाय यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास हमने अपनी परचेजेस खुद रिटर्न करनी है तो रिटर्न गुड्स टू, उस पर्सन का नाम आएगा, टू यूज़ हो रहा होगा। रिटर्न गुड्स टू कामरान, इसका मतलब कामरान को मैं चीज़ें रिटर्न कर रही हूँ, इट मीन्स परचेज रिटर्न, एंड देन अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। इसको यहाँ से प्रोसीड कर लीजिए। अकाउंट्स पेबल, नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन एंड देन परचेज रिटर्न इज क्रेडिट। अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करती हूँ, सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड एंड देन अकाउंट रिसीवेबल, नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन ओवर हियर, ठीक है। अमाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट लिखिएगा, टू रिकॉर्ड के बाद नरेशन आएगी एंड देन नरेशन लाइन, इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? यस, आई प्रोसीड। रिसीव्ड फ्रॉम जिशान ऑन अकाउंट, जिशान से वो पैसे रिसीव, देखें जब भी रिसीव्ड की बात आएगी इसका मतलब आपको कैश रिसीव्ड हुआ है डेफिनेटली। अब आपको जिशान से जो पैसे मिलने थे ऑन अकाउंट वाले वो मिल गए हैं, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे अगर कैश डेबिट हो गया एंड देन अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर जब आपको पैसे देंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ वाली एंट्री को देखिएगा, आपने क्या रिकॉर्ड करी थी, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, आपका अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो गई थी। पहले आपने जिशान से सामान खरीदा था 7200 का, जिसमें से 1200 का रिटर्न हो गया। अब आपको जिशान से कितने पैसे लेने हैं, 5500। हमने उससे 5500 रुपीज़ रिसीव्ड किए हैं, जिसकी जनरल एंट्री क्या बनाई है, कैश हमारे पास आ गया है एंड अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। इसका एक ईजीएस्ट वे ये है कि जब रिसीव के साथ नेम ऑफ द पर्सन शो हो रहा होता है, इसका मतलब आपने वो पैसे रिसीव किए हैं जो कि आपके पास रिसीवेबल्स थे, ठीक है। तो रिसीव्ड हमेशा हम पैसे उन्हीं लोगों से लेंगे जो कि हमारे पास रिसीवेबल्स होंगे, ठीक है। सो कैश व्हेन रिसीव्ड, योर कैश विल बी डेबिटेड एंड योर रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। लास्ट एंट्री हमारे पास है पेड सैलरी टू अमीन, अमीन के साथ हमने देखा है टू का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब पेड सैलरी टू अमीन, हम अमीन को दे रहे हैं, ठीक है। सैलरीज की नेचर क्या है बेटे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो पेड की वर्ड यूज होता है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिटेड एंड कैश क्रेडिटेड। लास्ट जनरल एंट्री है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिटेड। होप सो these journal entries are very much clear to you, and these are the very easiest way of recording. Okay, now after this question I proceed towards the next question. what will be the right transaction of the following? एग्जाम में बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको जनरल ऑलरेडी बना हुआ है और आपको इसकी ट्रांजेक्शन्स बतानी है, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबर 1 देखूं, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और नीचे मैं आपको नरेशन भी नहीं दूंगी, ये वाली लाइन नहीं दूंगी क्योंकि फिर तो आप लोग ट्रांजेक्शन्स खुद से लिख लेंगे ना, ठीक है। सो ये आपके पास जो नरेशन है ये लिखी भी नहीं होगी। कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, जब आपने कैश को डेबिट देखना है और कैपिटल क्रेडिट है, उसके नेचर्स अप्लाई करें, रूल और डेबिट क्रेडिट अप्लाई करें और फिर आप उसकी ट्रांजेक्शन बताएं। तो आप क्या ट्रांजेक्शन बोलेंगे, स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश रुपीज 200,000, ठीक है, या मिस्टर बाबर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 200,000, ये आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी। सो यू हैव टू राइट इट डाउन द ट्रांजेक्शन फॉर दीज जर्नल एंट्री। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है, आप पहले क्या करते थे, ट्रांजेक्शन से जनरल बनाते थे। ये आपका जो क्वेश्चन क्या है, जनरल टू ट्रांजेक्शन, यहाँ आप जनरल से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? Now we have purchases, debit accounts, payable, credit. क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट रुपीज 20,000। क्लियर? अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर XYZ रुपीज 20,000, देन
Account receivable debit, sales credit. Hope so. You people are understanding what I am discussing with you. Account receivable debit, sales credit, sold goods to Mr. ABC on account. Sales return, debit in account receivable, credit. ठीक है, this is your sales return. Return defective goods by Mr. ABC rupees 1000. Rent expense debit, cash credit. Paid rent expense rupees 5000. So these are the very easiest way of recording. ये आपके अपने पास checking भी हो सकती है. What you people have to do, check your memorization, how much you are understanding your debit and credit rules. Now here, the few journal entries which I would like to discuss in today's class again. We have purchase. This is, we are recording for the purchases, merchandise on cash, then purchases debited and cash credited. So this is all for revisionary journal entries. Then we have two ways of purchases in which we return purchases and we purchase on credit. सबसे पहले purchase on credit को देख लेते हैं. Whenever we have purchases on credit or on account, purchases की nature expense से, expense when increase it is debited. हमने वहाँ पे purchase commodities की बात करी है, purchase merchandise है, इसलिए purchases का word use कर रही हूँ. अगर आपके पास purchase furniture on credit होगा तो furniture debit और accounts payable credit लिखिएगा. जब नेम ऑफ द एसेट मेंशन होता है तो हम एसेट का नाम लिखते होते हैं. देन उसके रिटर्न में अगर आपने कोई डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करी है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटे? अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिटेड. Then we have purchase any asset. The name of the asset is mentioned. Any asset will be debited and cash will be credited. Then we have sales. Sold merchandise on cash. Cash will be debited and sales credited. बिकॉज जब भी हम सामान सोल्ड करेंगे बाय कैश तो कैश हमारे पास आएगा एंड सेल्स विल बी क्रेडिटेड. क्लियर? Then we have two other ways. Sales return by a customer. We have sales return debited and account receivable credited. क्योंकि कस्टमर ने आपको सामान रिटर्न कर दिया है, ठीक है, आपके पास जो गुड्स आपने सोल्ड आउट करी थी वो वापस आ गई हैं, एंड अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड. This is all I have done with you. Again, I am giving you the revision because we have, you know, revised our lectures. Yes, sold merchandise on account on credit. Account receivable will be debited and sales is credited. ठीक है? I am going a little bit faster. Sold asset, cash, debit and furniture will be credited. If you want to sold any asset, then your cash will be debited and your furniture will be credited because name of the asset is mentioned. Clear? ड्रॉइंग्स whenever we drew cash for office use, जब भी हम ऑफिस के इस्तेमाल के लिए पैसे निकालते हैं तो आप लोगों के पास कैश आता है और आपके बैंक में से अमाउंट क्रेडिट हो जाती है. ठीक है? When we withdrew cash for personal use from bank, अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं, then your drawing will be debit and bank account will be credited. Clear? If you withdrew any goods for personal use, अगर आप बिजनेस की commodities में, बिजनेस के सामान में से कोई थोड़ा सा सामान अपने लिए निकाल के लेके जा रहे हैं, then drawings will be debited and purchases will be credited. This is your home assignment for the journal entry. This is your question number 6. You people have to take this screenshot and you have to do as an home assignment these questions. Now I'm giving you home assignments so that you people should be practicing good for your class. And more or less, thank you so much. This is all about your journal entries.